Hello guys, welcome to our oral pathology lectures. In this lecture, we'll be discussing about pulpal and periapical diseases. In the previous lecture, we already discussed about pulpitis. We will revise that quickly and we will go ahead with the further diseases. In short, we will be revising. So if you are in doubt, you please comment that. You can go with the doubt solving first. First of all, what is pulpitis? It's inflammation of pulp. Now they have divided into two types, acute and chronic. Okay, in acute, both there are the reversible as well as irreversible. In chronic also, reversible, irreversible as well as hyperplastic. Okay, in acute, we have all acute symptoms. Okay, in chronic, all the symptoms will be very dull, and on the acute exacerbation only, we will be having pain. Okay, now reversible pulpitis as well as irreversible pulpitis. Here pain will be, it will be sharp. Okay, here pain will be lancinating pain and constant. Here pain will be only during stimuli. Here pain will be constant irrespective of the stimuli. Ignoring the stimuli, pain will be consistent. Here night pain will not be there. Here we'll be having night pain. Okay, pain type will be, here it's some like shooting pain, here it will be like throbbing pain. Okay, so these features are important. You have to go with this pain history and conclude with the disease. Okay, now we have also discussed chronic hyperplastic pulpitis. What is this chronic hyperplastic pulpitis? If the pulpitis is not treated in the initial stage, if the pulpitis is not treated in the earlier stages, pulp will have its habitat for organisms. So organisms will be settling in the pulp, will be causing necrosis of pulp, and until the symptoms are severe, patient will not have any pain. Symptoms will not be there. So it's type of chronic. And due to the inflammatory reaction, there will be granulation. Fibrosis will be there and angiogenesis. What is angiogenesis? Blood vessels will be formed in the pulp, leading to growth of gingiva or some tissue in the cavity of the tooth. This is called chronic hyperplastic pulpitis. Okay. In case of histopathologic features for pulpitis, you have to discuss about inflammatory features. In case of chronic hyperplastic pulpitis, you have to discuss about granulation tissue. Okay. So in today's lecture, we'll be discussing pulp polyp treatment. Okay, it's chronic hyperplastic pulpitis. We'll be discussing its treatment. You have to remove the polypoid tissue which is in the tooth or tooth cavity. After that, you have to remove the pulp. Then, if there is a bleeding in the cavity, you can stop it by applying pressure.
After that, you can go for root canal treatment. If the root canal treatment is not possible, go for extraction of tooth. In chronic hyperplastic pulpitis, we have treatment of removing the polyp tissue or excess tissue in the tooth cavity. Then remove the pulp, and depending upon the condition of tooth, you have to go for RCT or extraction. Okay. Now next question, periapical granuloma. Other name is chronic apical periodontitis. Okay. Now understand this. Whenever granuloma is formed, it is not a acute type of disorder. It is a chronic order, chronic disease in which there will be, first of all, starting of the disease, symptoms will be manifested. Patient will take the medication, symptoms will subside. Once again, symptoms will be there. Patient will take medication. In this process, what happens is granulation tissue is formed, okay, in the apex of tooth. So this process will lead to formation of periapical granuloma. What does it mean? Suppose today patient is having caries and caries is very fresh or recent. So in this case, periapical granuloma will not be there. It is a chronic disease. First of all, it has to be, it takes some time. Okay. Now what is this? It's a localized mass of granulation tissue around the root apex of non-vital tooth. Tooth has to become non-vital first, and then only it develops periapical granuloma, and it's a sort of reaction to inflammation and infection. Okay. Etiology. Pulpal inflammation is not treated. As I explained you, it is not a fresh disorder. First of all, if there is pulpitis or irreversible pulpitis, if you don't treat, it is a sequel of this. Periapical granuloma develops only after irreversible pulpitis or periapical abscess. Okay. Second thing is occlusal trauma. So what does this suggest you? All these are the etiologic factors of carry it of pulpitis only. Whatever are the factors for pulpitis will be the same for pyogenic granuloma. But here what happens, in the initial stages of pulpitis, we will have only few factors. But here we can see that periodontal infection in the root apex, perforation of root apex into the endodontic therapy, all these features will be extra. ओके, तो etiology क्या हुई? कैरीज हुई, ट्रॉमा हुआ, मैकेनिकल फैक्टर्स हुए, केमिकल फैक्टर्स हुए, हाइड्रोजेनिक एरर्स हुए, इडियोपैथिक एरर हुआ. ऐसे आपको etiology लिखना होगा. Now clinical features. What are the clinical features? First of all, tooth involves produce sensitivity to percussion. ठीक, टीओपी प्रेजेंट होगा. आप कोई प्रोब से उसको परकस करोगे, ठीक है, तो पेशेंट को पेन होगा. उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी टू परकशन. और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दांत के नीचे एपिकल रीजन में इडिमा, हाइपरेमिया, हाइपरेमिया का मतलब ब्लड वेसल्स बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर होगा ना, पल्पल ब्लड वेसल, उसका प्रेशर बढ़ जाना. इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिकल पेरिडोंटल लिगामेंट. ठीक है, टूथ के नीचे जो लिगामेंट होगी यहाँ पे, वहां पे इडिमा हो जाएगा, हाइपरेमिया हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. इसलिए पेशेंट को टीओपी पॉजिटिव होगा. फिर पेशेंट को क्या होगा? माइल्ड पेन होगा, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है.
एक्यूट होगी तो वो शार्प शूटिंग टाइप पेन होगा, स्पॉन्टेनियस पेन होगा, ठीक है। यहाँ पे माइल्ड पेन है और डिस्कम्फर्ट है, खाने में दिक्कत है। फिर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि सॉकेट में से दांत बाहर आ गया है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी भी हमने देखा ना, यहाँ पे थोड़ा इडिमा जैसा हो जाएगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि दांत थोड़ा बाहर आ गया है, बिकॉज देयर इज इडिमा ऑफ apical periodontal ligament. Due to its chronic nature, it will be asymptomatic in many cases. Okay, sometimes tooth may be vital, sometimes it may be partially vital. Okay, and in most of the cases, tooth will be non-vital. Okay, if the periapical granuloma is fully developed. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपने क्या सीखा अभी कि पेन होगा, माइल्ड होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, खाने में दिक्कत है, फिर पेशेंट को टेंडरन परकशन होगा, एपिकल पेरिडोनटल लिगामेंट में सेंसिटिविटी आ जाएगी, इडिमा हो जाएगा, हाइपरेमिया हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सब आपको लिखना है। फिर आता है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ग्रेजुलेशन टिश्यू जब भी होता है ना, तो देखो मैं जो जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आएगा, फाइब्रोब्लास्ट आएगा, एंडोथेलियल सेल्स आएगा और इमेच्योर ब्लड कैपिलरीज आएगी। ये सारी ग्रेजुलेशन टिश्यू जो होता है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसमें दो चीज होती है, फाइब्रोसिस और एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड कैपिलरीज बनना, वो सब। अब एंजियोजेनेसिस होने के लिए ब्लड कैपिलरीज का होना जरूरी है, ठीक है। फिर इंफ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेट, फिर एपिथेलियल आइलैंड्स भी है, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स है और फोम सेल्स। ये थोड़ा अलग आ रहा है पेरिएपिकल ग्रेन्युलोमा में। फिर कभी कभार प्लाज्मा सेल्स जो होंगे ना वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेंगे, तो टी लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी सेल, टी लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। फिर एपिथेलियल रेस्ट सेल ऑफ मालासेस, जो रूट बनता है ना तब इसमें से बनता है, ठीक है। एपिथेलियल रेस्ट सेल ऑफ मालासेस वो भी प्रोलिफरेट होगा और प्रोलिफरेट होने से कभी कभार सिस्ट भी बना देगा, ठीक है। तो अभी हमने जब सिस्ट का लेक्चर पढ़ा था तब ये आया था कि क्रॉनिक कैरीज होगी जब लंबे समय से पेरिएपिकल ग्रेन्युलोमा हो, तो वो एक रीजन है, ठीक है, सिस्ट होने का। ऐसे ही यहाँ पे जो पेरिपेरल ग्रेन्युलोमा हो उसमें सिस्ट के कन्वर्ट होने का चांस ज्यादा है। फिर बोनी टिश्यू एट द पेरिफेरी ऑफ लीजन, ठीक है, जहां पे बोन का टिश्यू होगा ना लीजन के बाहर, वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट होंगे और बोन रिजॉर्प्शन एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में लिख देना है। एक बात याद रखिए, आप पूरे का पूरा ये पैराग्राफ लिख दोगे तो भी वही मार्क मिलेंगे, शॉर्ट में लिख दोगे 3 या 4 सेंटेंस वो भी सही मार्क मिलेंगे। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, तो भी नया नया लगता है वही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे रसेल बॉडीज आई, तो वो आप लिख सकते हो कि पेरिएपिकल ग्रेन्युलोमा में रसेल बॉडीज आती है, ठीक है। कभी कभार बैक्टीरियाज भी आते हैं, ठीक है, इसके अंदर। फिर रिजॉर्प्शन ऑफ सीमेंटम और डेंटिन भी होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण, इसलिए सीमेंटोब्लास्टिक एक्टिविटी भी होती है और उसके कारण हाइपर सीमेंटोसिस हो जाता है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करना है मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ग्रेजुलेशन टिश्यू में आपको जैसे बताया फाइब्रोब्लास्ट वाला लिखना है, फिर ब्लड वेसल वाला लिखना है, फिर एंडोथेलियल सेल वाला लिखना है, फिर आपको लिखना है कि जो पेरिफेरी है लीजन की वहां पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, तो बोन की जो बॉर्डर होगी वो रिजॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे, ठीक है। फिर सीमेंटोब्लास्ट भी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके कारण सीमेंटो दिस हाइपर सीमेंटोसिस विल आल्सो बी देयर, ठीक है। और बैक्टीरियाज भी आएंगे, रसेल बॉडीज भी आएंगे। तो ऐसे करके एक डायग्राम ड्रॉ करना है
उसमें आपको ये पॉइंट खाली लेबलिंग करके लिख देने हैं। अगर आप पैराग्राफ नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, आपको टूथ को निकाल देना है और अगर टूथ के नीचे थोड़ी जो भी डेब्रिस है उसको सबको क्यूरेटाइज कर देना है। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग या रेमनेंट नहीं रह जाना चाहिए, इसलिए क्यूरेटाइज करते हैं। जब तक वो बोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको वो टिश्यू निकाल देना है, फिर आपको ड्रेसिंग दे देना है। ठीक है, तो पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा थोड़ा इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आया एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस। ठीक है, वो क्या है, टूथ के नीचे यहाँ पे कैरीज होता है और पल्प को इन्फ्लेम कर देता है। फिर क्या होता है, ऊपर पस नहीं आ सकता तो साइड से एल्वियोलस के कारण आएगा। ठीक है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे स्वेलिंग आ गया है टूथ के आजू बाजू, टूथ पे कैरीज होगा। तो क्यों, वाई, pulp cannot come, this carries or organisms or the pressure cannot be relieved from the opening due to its narrow position or narrow size. So from the size of the alveolus, pus will be coming. This is called acute suppurative infection in the periapical region of tooth. Okay? अब उसकी etiology क्या आती है, उसकी etiology है, पहले तो कैरीज आएगा। ठीक है, डीप कैरीज, फिर पल्पल इन्फेक्शन जो है वो पेरिएपिकल टिश्यू में आ गया। फिर कभी कभार टूथ का फ्रैक्चर भी हो जाता है जिसमें पल्प एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, आरसीटी के टाइम आपने एपिकल फोरामेन को परफोरेट कर दिया। ठीक है, ये सब उसके रीजन है। पल्प डिसीज आपको आपने ट्रीट नहीं किया, वो भी एक रीजन है। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर एंटीबायोटिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपको एंटीबायोटिक कवरेज देना होगा। फिर जितना भी इंफेक्शन है, ठीक है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। टूथ इन्वॉल्व है उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो उसकी ट्रीटमेंट आती है। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे, तो आप सोचिए कि कोई पेशेंट का टूथ है, उसके आजू बाजू यहाँ पे पस है। ठीक है, तो ये टीओपी पॉजिटिव होगा पहला तो। फिर ड्यूरिंग चूइंग देयर विल बी पेन, फिर स्वेलिंग होगा, फिर फेशियल एसिमेट्री होगा, फिर फाउल स्मेलिंग होगा, पस है इसलिए। फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, लैक ऑफ एपेटाइट होगा। तो क्लिनिकल फीचर आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसा ही अभी आएगा। कॉमन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन है, 2% रेडियोल्यूसेंसी का एक पार्ट है। पेन होगा, खाली आपको पेन लिखना है। स्वेलिंग होगा, बाहर की स्किन थोड़ी रेड हो जाएगी। जो का एरिया है वो आप टेंडर ऑन पाल्पेशन होगा। ठीक है, जहां पे स्वेलिंग है उसको आप पाल्पेट करोगे तो टेंडर होगा। पेन बढ़ता है परकशन के टाइम। ठीक है, हीट आप दोगे तो इंटेंसिफाई पेन होगा, इसलिए आपको बोलना है पेशेंट को कि हॉट फूड्स अवॉइड कीजिए। और कोल्ड देते हैं तो पेन रिलीव हो जाएगा। फिर अगर वो टूथ को जो एब्सेस बन जाता है यहाँ से, उसको कभी कभार क्या होता है, यहाँ एब्सेस होने के कारण यहाँ जो स्किन होती है ना बाहर की, वहां पे वो पस का एक ड्रेनेज हो जाता है, बाहर आता है पस वहां से। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं साइनस, जहां से पस बाहर आता है ना उसको हम साइनस बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभार पस भी बाहर आ जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो साइनस बन जाएगा। और अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आजू बाजू जो स्पेस होती है मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारी स्पेस होती है, बक्कल स्पेस है, टेम्परल स्पेस है, ऐसी सब स्पेस होती है।
उसमें पस चला जाएगा और पस वहां धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो उसके कारण ये स्पेस इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको तो यही लिखना है, टेंडर ऑन परकशन है, टेंडर ऑन पाल्पेशन है, स्वेलिंग है, पेन है, ऑक्लूजन में दिक्कत है, च्यूइंग में दिक्कत है, फाउल स्मेलिंग है। फिर ये कभी कभार आपको ठीक नहीं करते जल्दी से तो साइनस हो जाएगा, फिर भी ठीक नहीं करते हो तो स्पेस इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हिस्टोपैथोलॉजी, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू का भी एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, लिक्विफेक्शन, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटीनेशियस एक्सुडेट होगा, नेक्रोटिक टिश्यू होगा और बहुत सारे डेड सेल्स मिलेंगे आपको। फिर जो भी टिश्यू है आजू बाजू की, बोन के आजू बाजू जो टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल डायलेटेड मिलेंगे आपको। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर पीडीएल के अंदर इंफ्लेमेटरी चेंज देखने को मिलेगा, बोन मैरो के अंदर इंफ्लेमेटरी चेंज। और पेरिएपिकल रीजन में आपको क्या मिलेगा, बोनेट ट्रेबेकुले जो होगी ना वो आपको एम्प्टी दिखेगी। क्यों, क्योंकि पस के कारण वो बोनेट ट्रेबेकुले ने अपना स्ट्रक्चर खो दिया है। ठीक है, और वो बोनेट ट्रेबेकुले खाली क्यों दिखेगी, ऑस्टियोसाइट की डेथ के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्यूट सपरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, अब ये पल्पल इन्फेक्शन आपने ठीक नहीं किया तो आगे आगे जाके बोन में चला जाएगा। बोन में चला जाने के बाद इट विल बी हैविंग pus formation and it will be very having severe effects. When bone is involved, support for tooth will be weak and there will be chances for tooth mobility. So ultimately tooth will be mobile and we have to go for the extraction. Now definition for acute suppurative osteomyelitis. Acute का मतलब instant हो जाता है तुरंत ही, suppurative का मतलब pus फॉर्म हो जाता है, पस निकलता है। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो एक सीक्वल है, पेरिएपिकल इन्फेक्शन है ना उसका एक सीक्वल है। ठीक है, और टूथ के नीचे पहले एलुलर एब्सेस होता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है तो वो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन बोन के अंदर, मेडुलरी स्पेसेस विथ सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ बोन इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो सोचो कि कहाँ से चालू हुआ, पहले कैरिस हुआ, रिवर्सिबल पल्पाइटिस हुआ, आपने ठीक नहीं किया तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हुआ, फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो पेरिएपिकल एब्सेस हुआ, कभी कभार पेरिएपिकल ग्रैन्युलोमा भी हो सकता है, आपने ठीक नहीं हुआ तब ये ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता है या फिर स्पेस इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे सीक्वल में ये इन्फेक्शन होता है। अब इटियोलॉजी, तो इन्फेक्शन पल्प से स्प्रेड होगा मैंडिबल में। ठीक है, फिर कोई भी ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन होगा जैसे कि एमेलोब्लास्टोमा है, सीस्ट है, उसका इन्फेक्शन बोन में स्प्रेड होगा। कभी कभार टूथ निकालने के बाद आपने अगर ध्यान नहीं रखा इन्फेक्शन का प्रॉपर तो वो एंटीबायोटिक कवरेज भी नहीं दिया तो वो तब जाके ये हो जाता है। ठीक है, एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन का फ्रैक्चर होगा और उसमें से इन्फेक्शन हो जाएगा। पोस्ट रेडिएशन सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो आपको हमने बता दिया है रेडिएशन से तीन चीज होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, ORN, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। पहले तो आता है हाइपोप्लेसिया, सेल के नंबर कम हो जाते हैं, फिर हाइपो सेलुलैरिटी और हाइपोवास्कुलैरिटी, ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, और कभी कभार पेजेट्स वाले डिसीज होते हैं बोन वाले, उसका भी इंफेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी हुआ ऑस्टियोमाइलिटिस का आइटियोलॉजी।
तो इट्स एन infection spread or infection extension from the pulp periapical region, infection from the bone, infection from the tooth removal, infection from trauma, infection from radiation. इससे सारे रीजंस इन्वॉल्व है एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस में। तो आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स और व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? Age is after 50 years only it is found. Males are more commonly found. Mandibular lesions are more diffuse because mandible bone is somewhat stronger to break and damage. It is having diffuse appearance in case of osteomyelitis. And acute suppurative osteomyelitis of mandible in young patient, we have pain, diffuse and enlarged swelling of mandible. But in the initial stages, it will be asymptomatic. No symptoms will be there. In the later stages, we will have pain, diffuse or enlarged swelling. Now there is loosening and soreness of the regional tooth. आपको मैंने बता दिया नीचे के बोन खराब हो गया तो टूथ भी मोबाइल हो जाएगा, टूथ भी सोर हो जाएगा, फिर पस डिस्चार्जिंग साइनसेस हो जाएंगे, ठीक है। लिप में पेरेस्थीसिया हो जाएगा। नाउ हाउ दिस लिप इज अफेक्टेड? बिकॉज द बोन इन द मैंडिबल has inferior alveolar nerve. So when there is osteomyelitis, this nerve will be damaged, and so there are chances of paresthesia of lip. Patient is slightly febrile. Patient कमजोर हो जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है, उसको खाने में दिक्कत है और वॉमिटिंग भी हो जाता है। तो इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको लिखने हैं शॉर्ट करके। हिस्टोपैथोलॉजी क्या आती है, ठीक है। तो ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या आएगा? बोन के सारे चेंजेस आएंगे। तो पहले तो आप ये बताइए कि बोन मेरो का लिक्विफेक्शन होगा, ठीक है, और प्यूरिलेंट एक्सुडेट्स आ जाएगी, ठीक है। जो बोन होगा ना उसके अंदर में पस भी आ जाएगा और लिक्विफेक्शन भी आ जाएगा। फिर ये तो कॉमन ही है, बार बार इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, यही लिखना है। ये सेंटेंस की जगह इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। फिर कुछ बोन होंगे ना वो नेक्रोसिस हो जाएगा और उससे क्या होगा, जब बोन में डिसऑर्डर होता है तो बॉडी को ऐसा होता है कि नया बोन बना देता हूँ खराब बोन को निकाल के। तो खराब बोन को निकालने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट चाहिए हमको और नया बोन बनाने के लिए ब्लास्ट चाहिए। तो ये दोनों के बीच अभी फाइट होगी, बोन रिजॉर्व होगा, नया बोन बनेगा और उसके कारण एक जो खराब बोन होगा वो अलग हो जाएगा, सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और नया बोन जो बनेगा उसको बोलते हैं इनवॉल्यूक्रम, ठीक है। तो सिक्वेस्ट्रम और इनवॉल्यूक्रम, डेड बोन जो हो जाएगा उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रम और नया बनेगा उसको बोलते हैं इनवॉल्यूक्रम। दोनों को आपको हिस्टोपैथोलॉजी में लिखना है। अब बोन के इन्फेक्शन सीवियर है तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएगा? तो पेरियोस्टाइटिस, periosteum on the bone will be having inflammation and so there will be periostitis. Okay, then cellulitis also will be there if the infection is not controlled. Abscess will also will be there, ठीक है। अब ट्रीटमेंट भी आएगी आगे, उसको आपको क्या करना है, ऑक्सीजन देना है हाइपरबैरिक ताकि बस उसमें से निकल जाए, फिर एंटीबायोटिक कवरेज देना है, खराब बोन को निकाल देना है, पेशेंट को काउंसलिंग करना है, अगर बहुत ज्यादा कैविटी है तो आपको बोन ग्राफ्ट भी लगा देना है। तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान आएंगे लेकिन हम वो आगे पढ़ेंगे। डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑस्टियोमाइलिटिस, डिस्क्राइब इन डिटेल क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। तो अभी तो हमने एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस पढ़ा दिया है, वही उसका ये सेम है। ऑस्टियोमाइलिटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। अब ये लोग देखिए डेफिनेशन कैसे बनाते हैं।
परसिस्टेंट एब्सेस हो जाएगा, ठीक है, किसका, बोन के अंदर, उसमें नेक्रोसिस होगा, ठीक है, सपुरेशन भी होगा, रिसॉर्प्शन होगा, स्क्लेरोसिस और हाइपरप्लेसिया। तो ये सब हमने क्लिनिकल फीचर में भी पढ़ लिया और हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ लिया, ये सब आपको लिखना है उसकी डेफिनेशन में, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ये है कि वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बोन की जो मेडुलरी कैविटी का इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है और हेवर्सन सिस्टम इन्वॉल्व होता है और पेरियोस्टम तक जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेडुलरी कैविटी, फिर हेवर्सन सिस्टम और फिर पेरियोस्टम। ये ऑस्टियोमाइलिटिस का डेफिनेशन हो गया। इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम मेडुलरी कैविटी, extends to Everson system and then extends to periosteum. ओके, ऐसे आपको शॉर्ट में MHP लिखना है। नाउ क्लासिफिकेशन, पहले आएगा एक्यूट, उसमें सपुरेटिव, सब पेरियोस्टल, पेरियोस्टाइटिस। फिर आएगा क्रॉनिक, उसमें क्या आएगा, नॉन स्पेसिफिक टाइप में दो है, क्रॉनिक इंट्रामेडुलरी, फोकल स्क्लेरोसिंग, डिफ्यूज स्क्लेरोसिंग, ऑस्टियोमाइलिटिस। हमने कल ही बात की थी, आपको क्लासिफिकेशन ठीक से करना है। क्लासिफिकेशन ठीक होगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लोग क्लासिफिकेशन ही पहले पूछेंगे। डिफाइन ऑस्टियोमाइलिटिस, क्लासिफाई ऑस्टियोमाइलिटिस एंड डिस्क्राइब एक्यूट सपुरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस इन डिटेल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब स्पेसिफिक टाइप का ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, उसमें भी क्या क्या है, अलग अलग डिसीज के साथ जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वो सब आएगा, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है पैथोजेनेसिस। अब क्या होगा ऑस्टियोमाइलिटिस में, समझिए, पहले इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, वहां पे नेक्रोसिस हो गया, लिक्विफेक्शन हो गया, अब वो क्या करते हैं वो सब समझाना है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, उसको आपको ऐसे फ्लो चार्ट में याद रखना है। पहले इन्फ्लेमेशन होगा, फिर पस फॉर्म हो जाएगा, फिर पेरियोस्टम अलग हो जाएगा, फिर नेक्रोसिस ऑफ कॉर्टिकल बोन हो जाएगा, फिर साइनस बन जाएंगे, फिर स्प्रेड होगा इन्फेक्शन, फिर जो वेसल्स होगी उसमें ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस का मीनिंग ये है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो जाएगी, कैंसरस बोन मर जाएगा और वो डेड बोन हो जाएगा, पेरिएफाइकल इन्फेक्शन हो जाएगा और लास्ट में वो बोन मैरो में एंट्री ले लेगा, ठीक है, और फिर एक कैंसरस बोन स्पेस में ऑर्डर होगा। तो ये सीक्वेंस फिर से आप याद रखिए, बहुत इजी तरीके से दिया है, ऐसे ही आपको दिखना है। पैथोजेनेसिस में पहले इन्फ्लेमेशन होगा, पेरियोस्टाइटिस कर देगा, फिर पस फॉर्म हो जाएगा, फिर कॉर्टिकल प्लेट होगी ना, वो सेपरेट हो जाएगी पेरियोस्टम से, कॉर्टिकल बोन का नेक्रोसिस हो जाएगा, एब्सेस होने के कारण यहाँ पे पस भी हो जाएगा और साइनस ट्रैक्ट भी बन जाएगा, फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा वॉकमैन्स कैनाल में और बिलो द पेरियोस्टम वो आ जाएगा इन्फेक्शन, फिर जितने भी ब्लड वेसल्स है उसकी थ्रोम्बोसिस आ जाएगी और इन्फ्लेमेशन होगा अंदर, उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, नीचे कन्फाइंड स्पेसेस होगी बोन के अंदर, वहां पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट वो भर देंगे, बोन सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बोन को डेथ हो जाएगी, डेड बोन को सिक्वेस्ट्रम बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन आया डिस्क्राइब सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वॉल्व, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर बोन स्पेस होगी बोन के अंदर, वहां पे वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और बोन को डैमेज करना चालू कर देता है, ठीक है। फिर सिक्वेस्ट्रम बन जाएगा, डेड बोन बन जाएगा ये, और फिर इनवॉल्यूक्रम बन जाएगा, नया बोन बनेगा, ठीक है। और कभी कभार जो नए बोन में से पस डिस्चार्ज होता है वो स्किन के ऊपर भी आएगा, उसको बोलते हैं क्लोएक, ठीक है।
जब इन्वोल्यूक्रम बनता है तब जाके पस स्किन के ऊपर भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे क्लोएका। स्पेलिंग थोड़ा अलग है लेकिन क्लोएका बोलेंगे। अब क्लिनिकल फीचर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ जाऊंगा जल्दी से। पहले तो मोलर एरिया में ज्यादा होता है ये साइट। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट साइट। सेकेंड इज पेन। यू कैनॉट लोकेट द पेन। पेन इज यूजुअली माइल्ड एंड इंसिडियस। जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बोन को एक्सपांड करने का चालू कर दिया तब जाके हमको दिक्कत होगी पेशेंट को, ठीक है। फिर जॉ का स्वेलिंग हो जाएगा, टूथ की मोबिलिटी, साइनस भी हो जाएगा, नर्व इन्वॉल्वमेंट के कारण एनेस्थेसिया और पेरेस्थेसिया फ्लिप हो जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे। फिर आप पेशेंट को पाल्पेट करोगे तो आपको वुड जैसा लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये थिक वुडी फीलिंग है पाल्पेशन पर, और जॉ की साइज भी बढ़ जाएगी। तो उससे यहाँ पॉइंट लिखा नहीं है तो आपको लिख देना है फेशियल एसिमेट्री भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो, खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, मुंह खोलने में दिक्कत, वो सब। हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके पहले बताना है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, एक्सुडेट होता है, पस होता है किसके अंदर, मेडुलरी स्पेसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेडुलरी स्पेस लगा दीजिए और यहाँ बता दीजिए कि नेक्रोसिस पल्प एब्सेस हियर। फिर ये कॉमन वाला सेंटेंस, इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेट, ठीक है। फिर दोनों सेल्स यहाँ देखने को मिलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। बोनी ट्रेबेकुले भी देखने को मिलेगी और रिवर्सल लाइंस देखने को मिलेगी। रिवर्सल लाइंस क्यों होती है, क्योंकि बॉन्ड पहले यहाँ रिजॉल्व होता है फिर यहाँ नया बॉन्ड बन जाता है ऐसे। तो ऐसे रिवर्सल लाइंस वहां पे देखने को मिलेगी। फिर हिस्टोपैथोलॉजी में सिक्वेस्ट्रम भी आप बता सकते हो कि लंबे टाइम पर है हो रहा है तो सिक्वेस्ट्रम हो गया है, और बैक्टीरिया की कॉलोनीज भी है। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ये वीडियो में जितना पॉइंट आपको दिख रहा है ये पीडीएफ में, वो आपको शॉर्ट शॉर्ट में करके डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कर देना है। तो ऐसे आपको ऑस्टियोमाइलिटिस का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पल्पाइटिस, उसकी सीक्वल और गेयर्स ऑस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही है, इन्फ्लेशन ऑफ पल्प इज कॉल्ड पल्पाइटिस। क्लासिफिकेशन में रिवर्सिबल, उसमें भी दोनों, अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखाया। इरिवर्सिबल में क्या होगा, एक्यूट होगा तो कोल्ड में एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। फिर क्रॉनिक होगा तो पल्प एक्सपोजर भी हो सकता है और उसमें पेन नहीं होगा। अब आता है गैर्स ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म पे भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है। वो क्या है, इट्स ए क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस विथ प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस, ठीक है। और पेरियोस्टाइटिस ओसिफिकेंस और गैर्स क्रॉनिक नॉन सपोरेटिव स्क्लेरोटिंग ऑस्टियोटाइटिस। अब ये क्या है, इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा ना उसमें यही था कि बोन के अंदर पस आ जाएगा, नेक्रोसिस होगा, लिक्विफेक्शन होगा, और उसको बोलते हैं हम सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। लेकिन अब ये नया ऑस्टियोमाइलिटिस ऐसा है जहाँ पे पस फॉर्म नहीं होगा। एक ऑस्टियोमाइलिटिस ऐसा है कि जहाँ पे खाली पेरियोस्टियम जो है ना बोन के ऊपर, उसमें रिएक्शन होगा और उसका प्रोलिफरेशन होगा, उसकी साइज बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इसलिए उसको बोलते हैं पेरियोस्टाइटिस ओसिफिकेंस। थोड़ा बॉन्ड वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों होता है, उसका मोरल क्या है, उसका एम क्या है, तो एक रिएक्टिव पेरियोस्टियल ऑस्टियोजेनेसिस है, ठीक है। बोन के अंदर इन्फेक्शन है
इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो पस फॉर्म हो जाए, कि वो बोन को डैमेज कर सके। खाली लो ग्रेड इन्फेक्शन है या फिर ट्रॉमा है। ऐसे केस में जो पेरियोस्टियम होगा वो एक रिएक्शन देगा, उसमें थोड़े इन्फ्लेमेटरी चेंज आएंगे और उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पस की कोई बात ही नहीं, ठीक है। पस की बात आती है तो एक्यूट सपरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस में, यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव पेरियोस्टाइटिस या गेर्स ऑस्टियोमाइलिटिस में खाली आपको पेरियोस्टियम की बात करनी है। ऐसे अगर आपको याद है तो आपको आगे लिखने में आगे इजी रहेगा। अब इटियोलॉजी, इन्फेक्शन, क्रॉनिक एब्सेस, सिस्ट, जो भी ऑस्टियोमाइलिटिस का इटियोलॉजी था वो सेम ही आएगा। इन्फेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, इन्फेक्शन फ्रॉम पेरिएपिकल रीजन, इन्फेक्शन फ्रॉम ट्यूमर, ये आप एक सीक्वल बता सकते हो। इन्फेक्शन फ्रॉम बोन ट्यूमर्स, बोन डिसऑर्डर्स, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैकेनिकल इरिटेशन आता है, क्रॉनिक ट्रॉमा आता है, फ्रैक्चर भी आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है इटियोलॉजी, लेकिन फ्रैक्चर भी आएगा। तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर क्या आएगा आपको पता ही है कि वो जो सपोर्टिव वाला होता था ना वो एडल्ट में होता था, ओल्ड एज में, और ये यंग में होता है, ठीक है। वो पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि पोस्टीरियर पार्ट में इन्वॉल्व होता है, कैरियर्स नॉन वाइटल टूथ होगा, ठीक है। टूथ नॉन वाइटल होगा, लो ग्रेड इन्फेक्शन होगा और इसके कारण पस नहीं हो रहा है। अगर हाई ग्रेड होगा तभी जाके पस फॉर्म होगा। लो ग्रेड इन्फेक्शन है इसलिए पस नहीं फॉर्म हो रहा है, खाली पेरियोस्टम अपना रिएक्शन बता रहे हैं, थोड़ा ग्रो होकर, थोड़ा डेवलप होकर, इसलिए इसको बोलते हैं गैर्स ऑस्टियोमाइलिटिस या प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस। फिर स्लाइट पेन होगा, वैग पेन, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि कहाँ एग्जैक्ट पेन हो रहा है। फिर फीवर भी आ सकता है और ल्यूकोसाइटोसिस भी आ सकता है। ईएसआर नॉर्मल होगा, ठीक है। ये उसके क्लिनिकल फीचर है। वो तो आप ऐड कर ही सकते हो, पेन, फिर ट्यूमर, फेशियल एसिमेट्री, पेशेंट को ओक्लूजन में दिक्कत, ऐसे सब ऐड कर सकते हो। अब रोंजोनोग्राफिक फीचर्स, तो क्या आएगा? थिन कॉन्वेक्स शेल ऑफ बोन ओवर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो रेडियोग्राफ आपको दिखेगा ना उसमें आपको रेडियोग्राफिक शेल एक दिखेगा बोन का, थीन वाला। फिर धीरे धीरे वो कॉर्टेक्स होगा ना वो थिक हो जाएगा, वो लेमिनेटेड हो जाएगा और कभी कभार रेडियोलेशन होगा और रेडियो ओपेक होगा, ठीक है। तो रेडियोग्राफिक फीचर में आपको थोड़ा ये भी लिखना पड़ेगा, रेडियोलेशन है, रेडियो ओपेक है, और वो थिन कॉर्टिकल प्लेट है उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये जो अपीयरेंस है ना उसको बोलते हैं ऑनियन स्किन अपीयरेंस। तो बॉन कैसा दिखेगा मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये बॉन का बॉर्डर है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, तो ऐसा बॉन दिखेगा रेडियोग्राफ में, इसको बोलते हैं ऑनियन स्किन अपीयरेंस। फिर जो कैंसरस बॉन होगा अंदर का, ठीक है, वो नॉर्मल हो सकता है, कभी कभार स्क्लेरोटिक भी बन सकता है और कभी कभार ऑस्टियोलाइटिक चेंजेस भी दिखा सकता है। एक बात याद रखना, इतना ज्यादा रटना नहीं है आपको, तो इसमें से 3 या 4 पॉइंट ही शॉर्ट में लिख के बता देना है। और जो रेडियोग्राफिक फीचर में खाली टाइटल होगा तो भी चल जाएगा। और कभी कभार छोटे लीजन होंगे वहां पे सिक्वेस्ट्रा भी होगा। सिक्वेस्ट्रा का मतलब डेड बोन, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में देखो यहाँ पे पस की एक्टिविटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको सारी बोन की एक्टिविटी बनाना बताना है, ठीक है। तो ऑस्टियोस दिखेंगे, बोन का टिश्यू दिखेगा, फिर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दिखेगी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी दिखेगी, मेरोस्पेस के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ट्रेबेकुला जो है ना वो ऐसे अरेंज होंगे परपेंडिकुलर टू कॉर्टेक्स, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम
रेटिफॉर्म पैटर्न, इस पैटर्न में ट्रेबेकुला अरेंज होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है बिटवीन द बोनी ट्रेबेकुला वो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स कभी कभार दिखेगा उसमें, ठीक है। तो आपको ये इतना शॉर्ट करके लिखना है। अब ट्रीटमेंट क्या है, प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस, तो आपको तो पता ही है, पहले तो जो इटियोलॉजी है उसको निकाल देना है, फिर क्या करना है, फिर जो भी टूथ इन्वॉल्व है उसको निकाल देना है, आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक देना है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस में ऑक्सीजन थेरेपी आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी आएगी। फिर कभी कभार प्रोग्नोसिस इतना अच्छा होगा तो आपको आगे जाके सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एक्यूट सपोरेटिव, प्रोलिफरेटिव पोस्ट ऑस्टियोमाइलाइटिस और प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस और गैर ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये दोनों आपको करने हैं। फिर इटियोलॉजी ऑफ पल्पाइटिस, ये तो आपको पता ही है, कैरीज, कैविटी प्रिपरेशन, ट्रॉमा, मैकेनिकल, इन्फेक्शन, क्लिनिकल, वो केमिकल, ये सब वो आएगा। पेरिएपिकल एब्सेस, ये भी आपको पता ही है, वो एक्यूट एलुलर एब्सेस की तरह ही होता है, टूथ के नीचे यहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पस फॉर्म हो जाएगा। एक्यूट एलुलर एब्सेस में क्या होता था, वो यहाँ पे स्प्रेड हो गया था, लेकिन ये तो खाली नीचे ही रहेगा, तो क्या होगा इसमें, पस फॉर्म नीचे हो जाएगा, उसकी इटियोलॉजी बोलेंगे लोग कि कैरीज है, डीप कैरीज है, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया इनिशियल लीजन को, ठीक है, वो सब आएगा। फिर स्प्रेड होगा इन्फेक्शन, फिर उसकी ट्रीटमेंट आएगी। ट्रीटमेंट क्या आएगी, उसको आपको पस जो है उसको ड्रेन करना है, उसको ओपनिंग कर देना है टूथ के अंदर ताकि पस सब बाहर आ जाए और उसको निकाल देना है। क्लिनिकल फीचर्स तो आपको पता ही है, जब एब्सेस होता है तो क्या होता है, पेन होता है, फीवर होता है, फिर पेशेंट को खाने में दिक्कत है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। फिर लिम्फेडेनोपैथी, जब भी बॉडी में एब्सेस होता है ना या पस फॉर्म होता है ना, तो जितने भी लिम्फ नोड्स है वो थोड़े टेंडर हो जाते हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप पाल्पेट करोगे लिम्फ नोड को तो आपको पेन होगा, इसको बोलेंगे हम लिम्फेडेनोपैथी। अब हिस्टोपैथोलॉजी में जो आपको लिखना है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, उसमें उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, इसमें एब्सेस है इसलिए पस का आएगा, नेक्रोसिस का आएगा, वो सब एक्स्ट्रा आएगा, बाकी ये तो कॉमन ही आ गया। इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, फिर सारे सेल्स आ जाएंगे इसमें, थोड़ा नेक्रोसिस भी हो जाएगा, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ पेरिएपिकल ग्रैन्युलोमा, तो क्या होता है, तो आपको पता ही है कि पहले जो इन्फेक्शन होगा पल्प के अंदर, रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा, इरिवर्सिबल होगा, वो आपने ट्रीट नहीं किया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, फिर पेशेंट कुछ दवाई नहीं लेता है, ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, तो वो ऐसे रिएक्शन में ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है प्रोलॉन्ग इरिटेशन, ये एक बार की बात नहीं, बार बार पल्प इंजर होता है, हैरान होता है इन्फेक्टेड रूट कैनाल से, तब जाके इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है क्रोनिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस में, पीडीएल में, ठीक है। फिर क्या होता है, सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और इसके कारण वो दोनों में ऐसा रिएक्शन आ जाएगा कि वहां पे इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा और वो धीरे धीरे नेक्रोसिस भी हो जाएगा और लास्टली वो ग्रेन्युलेशन टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिनिक्स एब्सेस, फिनिक्स एब्सेस क्या है, तो देखो कोई क्रॉनिक वाला लीजन होता है टूथ के अंदर, उसको अचानक ही जोश आ गया और वो अचानक अपने सिम्टम्स दिखाने लगा, उसको बोलते हैं एक्यूट एक्सासर्बेशन, ठीक है। पेशेंट को अभी दांत में दर्द नहीं हो रहा है, क्रॉनिक एब्सेस है, क्रॉनिक पेरिएपिकल लीजन है,
लेकिन उसमें कुछ गरम खाया, कुछ इटियोलॉजी आई या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो अचानक से ही उसको इतना दुखने लगा कि बात मत पूछो। तो उसको बोलेंगे एक्यूट एक्सासर्बेशन, सडनली उसको पेन ज्यादा हो गया। तो ऐसे एब्सेस को बोलते हैं फिनिक्स एब्सेस। ठीक है, फिनिक्स एब्सेस ऐसा है कि रिक्रूडेसेंट है। ठीक है, वो ऐसे कुछ नहीं करता है, लेकिन जब होता है तो बहुत पेन होता है, और उसके आप सिम्टम्स से एटियोलॉजिक फैक्टर्स निकाल दोगे तो वो सबसाइड हो जाएगा। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। ठीक है, वो सुपर इम्पोज्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्रॉनिक लीजन। मैंने जैसे बताया ना, वो एक लीजन होता है, अभी उसमें कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन उसमें अचानक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ गया तो बोलते हैं हम फिनिक्स एब्सेस। ये कभी कभार 5 मार्क्स में आ सकता है। अब इटियोलॉजी, तो आप जो भी क्रॉनिक पेरिएपिकल एब्सेस की थी, पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा की इटियोलॉजी थी, वही आपको लिखना है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर तो आपको पता ही है, जब क्रॉनिक पेरिएपिकल एब्सेस होता है पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा, तो टीओपी पॉजिटिव होगा, टेंडर ऑन परकशन होगा टूथ। फिर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि टूथ थोड़ा बाहर आ गया। फिर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि फाउल स्मेलिंग है, पस आ रहा है। ठीक है, कभी कभार स्वेलिंग भी हो सकता है, कभी कभार पस भी हो जाएगा और साइनस भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा ना, उसमें थोड़ी कॉमन चीज आपको याद रखना है। यहाँ फीवर भी आ सकता है, मलेस भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभार पस भी फॉर्म होगा, और जब लिक्विफेक्शन हो जाएगा तो साइनस ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्रॉनिक एलोजर एब्सेस फॉर्म होगा। अब हिस्टोलॉजी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके अंदर आपको कॉमन ही लिखना है। जो भी तक आपने पेरिएपिकल एब्सेस में लिखा, पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा में लिखा, वही सब आएगा। इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। फिर क्या आएगा? लिक्विफेक्शन, नेक्रोसिस आएगा, वो सब आपको लिखना है। अब ट्रीटमेंट, तो जब भी कोई एब्सेस होता है ना, तो पहली ट्रीटमेंट आती है इंसिशन और ड्रेनेज। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो पस पड़ गया है उसको आपको रिलीज कर देना है। कोई भी आप ओपनिंग दे दीजिए, ड्रेन बना दीजिए, ताकि वो पस बाहर आ जाए। पस बाहर आ जाने से पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक बार पेशेंट का पेन हो गया कम, तो रूट कैनाल थेरेपी आप कर सकते हो। ठीक है, आरसी। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे पल्पल और पेरिएपिकल टिश्यूज पढ़ लिया। आप हमारे यूट्यूब वीडियोस को फिर से देख सकते हो। हमारी जो लाइव चैनल है उसमें भी आ जाएगा। जो मेडिकल डेंटल एकेडमी की चैनल है उसमें आपको लाइव सेक्शन में जाना है, तो ये वीडियो भी आ गया होगा, आप देख लो फिर से। और हमने ये जो पीडीएफ भेजी है वो आप फिर से रिवाइज कीजिए। और मैं तो बोल रहा हूँ आज के आज ये सारे टॉपिक्स कर लो रिवाइज। आपको कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करके, हमको मैसेज करके भी आप बोल सकते हो। आज के लेक्चर में इतना काफी है गाइस। So guys, please like and subscribe our videos. We are providing you guidance for helping you in dental platform. If you think that if you are having difficulty in any dental topics, you can contact us and we can give you guidance on that. Please like and subscribe our channel. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon for upcoming notifications. Have a nice time, guys. Bye bye.